दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल पर। तो आज दोस्तों हम वो वीडियो शुरू करेंगे जो हमने लेफ्ट किया था पिछले वीडियो में। मतलब कि हम उस टॉपिक को शुरू करेंगे जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया था और सेकेंड पार्ट लेफ्ट था। उस टॉपिक का नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था। वी हैव कवर्ड दैट द ओरिजिन्स ऑफ क्रिप्टो, व्हाट आर द रिस्क्स इन क्रिप्टो, what is blockchain technology, how can one become a successful investor in crypto, and what are the cautions while using cryptocurrency. But the last two topics that I have mentioned about the risks in crypto and cautions of crypto and how one can become a successful investor in crypto will be covered majorly in this video, because in the first part we have tried only overview of the crypto, although it is long video and the second one is short, but the main part of the crypto is on second part. So stay tuned to watch this video, and if you have not watched the previous video then you will not understand this video, so watch this. So what is I'm telling that cryptocurrency part 2, we will cover now cryptocurrency part 2. So we will start this video by imagining that I am a crypto investor. I have no knowledge of investing in crypto and I am going to invest in crypto. So what will I do? What can I do? I will have to consult an experienced man, an expert. So what are the concerns? If you will tell me, if he is an honest, then what are the concerns? We will discuss about the concerns. The concerns around crypto is investors could burn their fingers in crypto since it is volatile. So I am telling that investors could burn their fingers if in crypto since it is volatile. So what is the meaning of burning their fingers? It is not like that you need to put your fingers on fire and then it will burn. It is not like that. It is a funny part, but it is not like that. It means that they can suffer big loss if because of its volatile nature. What is meaning of volatile? In Hindi it is called parivartansheel, means constantly changing. So its rate is constantly changing. Suddenly it will go high up, and if any country imposes a ban on cryptocurrency, so it will fall down. Recently I gave an example in the previous video that crypto was going on a very high rate. Suddenly Turkey, a country, banned the crypto, and then the crypto prices fall down, and because of that a trader lost rupee 2.5 million US dollar. So that is very big amount, because several big companies in India have a net worth of US dollar 2 million. So it is more than that also. So that why it is of volatile nature. That's why the investors could burn their fingers, like that that trader burned his fingers. So that is first concern. So now we will not only discuss concern, we will discuss potential solutions, what government can do or people can do to solve these concerns. So the potential solution for this problem is that investors could burn their fingers in crypto since it is very much volatile. The potential solution of this problem is that investors could educate themselves, and the government should make a safe environment to safeguard the interests of the investors. For example, the prices of crypto for the entire year will be decided, मतलब पहले डिसाइड कर लिया जाएगा कि पूरे साल का क्रिप्टो का प्राइस ये रहेगा, तब इन्वेस्ट करें, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा. तो दैट इज सोल्यूशन. एक सेफ गार्ड इन्वायरमेंट गवर्नमेंट को बनाना होगा. What is the second concern? Second concern is surge in promotions and advertisements. Now you will say that what is the problem in advertisements? If it will surge also, you can see advertisements of cosmetics, of electronics items, that they are very much common. So they are also surging. Yes, they are surging, but they are not impacting our currency. This will, if the promotion and advertisement will surge ahead, so the many people will see. So many people will see
many people will see, then many people will invest, and if so it will start getting very much returns on crypto investments, and this is a problem for government and for any sovereign country. So and if the advertisements mislead people, then it will impact people also. So the potential solution of this problem is that the government can ask the Advertisement Standards Council of India, which regulates the advertisements, to keep a check on these types of advertisements, and can flag also, can stop also some of the advertisement that will mislead people. So the third concern is hackers. There are many instances that not hawkers, I have pronounced wrongly, hackers break down into digital wallet, digital currency, cryptocurrency, and then stole the crypto. Like I have bought some cryptocurrencies like Bitcoin, then hackers will break into my wallet and stole my cryptocurrency. So I will burn my finger. So remember, burning the finger not means that to keep my finger in fire, if you are thinking so that. So hackers can steal my cryptocurrency by breaking into my digital wallet. So what is the problem of the hackers? And the problem of the hackers are in every digital world, in every digital thing, like in digital transfers, and in many important websites are also hacked. For instance, today I have read a news that it is a funny thing, but the PMO, Prime Minister Office, means the PM Narendra Modi Twitter account had been hacked by some hackers. मतलब बताइए, नरेंद्र मोदी जी का अकाउंट हैक कर लिया गया ट्विटर का, एंड ये क्यों हैक किया गया, और ये इस बात मैं अभी क्यों उठा रहा हूँ कि भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड था. उस हैक करके उस ट्वीट पे लिखा गया था कि इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया है, और ये भी कहा गया था कि गवर्नमेंट 500 क्रिप्टो खरीदेगी भी और लोगों में बांटेगी. ये फेक ट्वीट किया गया था. बाद में पीएमओ की तरफ से बयान आया कि जो भी इस आधा एक घंटा के पीरियड में, 2 घंटे के पीरियड में जो भी ट्वीट किए गए हैं उसको अनदेखा किया जाए, और इसको रिस्टोर कर लिया गया है. तो पीएमओ, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से बयान आया था कि ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है. तो कुछ लोगों को लगा था कि कहीं इंडिया ने सही में क्रिप्टो करेंसी को लीगल तो नहीं मान लिया. तो ये बहुत बड़ा हरकम मच जाता है, क्योंकि अभी तक मेजर कंट्रीज में से किसी ने भी क्रिप्टो करेंसी को लीगल नहीं किया है. यूएस, यूके, कनाडा, इंडिया, ये सब उसको ट्रेड के लिए अलाउ करते हैं, पर लीगल करेंसी के रूप में अलाउ नहीं करते हैं. और चाइना और रशिया तो यूज ही नहीं करते हैं. चाइना ने तो इनफैक्ट बैन लगाया हुआ है, लेकिन उस बैन का मतलब कुछ नहीं है. बैन मतलब इसलिए कहा गया है कि उससे क्रिप्टो करेंसी के प्राइस नीचे आ जाए, ताकि बाद में वो फिर लो प्राइसेस पे खरीद सके चाइना. और उससे का चाइना का भी इम्पैक्ट है कि क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन ज़्यादा बढ़ा, तो उसका जो खुद का डिजिटल करेंसी है, मतलब युआन चाइना का पेपर करेंसी भी और डिजिटल करेंसी भी है, तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा. इसलिए चाइना ने ये इसको रोक के रखा है. तो लेकिन चाइना और रशिया ने तो बैन करके रखा है, तो इंडिया कैसे मान के दे सकता है? अभी तक सिर्फ देयर आर ओनली 2 कंट्री दैट आई हैव, दिस टॉपिक आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो आल्सो. देयर आर ओनली 2 countries in the world till now that have supported, that have authorized cryptocurrency as a legal tender. One is El Salvador and another country is Cuba. Cuba we will remember, इसको चीनी का कटोरी भी बोलते हैं, the bowl of sugar. क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के माध्यम से आप उसको याद रख सकते हैं, क्यूबा नाम है. और एक एल साल्वाडोर, इसका भी नाम आपने सुना ही होगा. तो यही 2 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी तक इसको मान्यता दी है. तो ये पीएमओ का अकाउंट भी हैक हो गया था. तो हैकर्स का प्रॉब्लम, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक हैक हो सकता है तो कुछ भी हैक हो सकता है. अब हम बात करते हैं 4th प्रॉब्लम. इसका प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इन्वेस्टर्स अपने आप को एजुकेट करें. जैसा कि जब इक्विटी मार्केट या शेयर बाजार में जब इन्वेस्ट करना था, तो इन्वेस्टर्स ने कैसे अपने आप को एजुकेट किया, शुड एजुकेट देमसेल्व्स. एंड तो वहाँ पर इसका एक और जो मेजर प्रॉब्लम किसी भी कंट्री को हो सकता है वो टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग. इस क्रिप्टो करेंसी क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से है, तो अगर सरकार उसको ठीक से रेगुलेट कर नहीं सकती है, क्योंकि अगर उसको रेगुलेट करने जाएगी किसी भी क्रिप्टो के पेमेंट को बीच में रोकने, तो इनवैलिड हो जाएगा. इससे क्या होगा, टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या बढ़ेगी. टेररिज्म कैसे, मान लीजिए इंडिया में कोई स्लीपर सेल है. स्लीपर सेल का मतलब समझ रहे हैं ना, तो ऐसे लोग जो दूसरे देश से आते हैं और इंडिया में रहते हैं,
बन के, लेकिन इंडिया में बम धमाका करने, टेररिज्म फैलाने, वो बोलते हैं स्लीपर सेल्स। स्लीपर सेल्स को पैसा दिया जाता है उस कंट्री द्वारा, दूसरे कंट्री द्वारा, किसी भी टेररिस्ट ग्रुप द्वारा, नॉट से कंट्री तो किसी भी ग्रुप द्वारा, कुछ कंट्रीज के द्वारा भी होता है, पर हम ग्रुप की बात करते हैं, जैसे कि जैसे लश्कर तैयबा हो गया, ये सब। तो कैसे करेगा वो क्या करेगा, क्रिप्टो करेंसी के रूप में उसको ट्रांसफ़र कर देगा। वो इंडिया में क्या करेगा, इंडिया में तो क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए लोग पागल हुए पड़े हैं। वो बंदा स्लीपर सेल, जैसे लश्कर तैयबा का कोई आदमी बैठे हुए कहीं और इंडिया में भेज देगा अपने साथी को, जो स्लीपर सेल है, क्रिप्टो करेंसी के रूप में। वो आदमी जाके आप क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में किसी भी इन्वेस्टर को बेच देगा, वो इन्वेस्टर उसको बदले में उतना पैसे दे देगा, और वो उस पैसे से क्या करेगा, इंडिया में धमाका करेगा। तो वो टेररिज्म का समस्या है। मनी लॉन्ड्रिंग, यानी सफ़ेद, काला धन सफ़ेद हो जाएगा, उसको क्रिप्टो के रूप में बदल के फिर निकाल लेंगे। तो इस समस्या का समझने का क्या समाधान है, तो गवर्नमेंट शुड पुट इन प्रॉपर रेगुलेटरी नेटवर्क, proper regulatory policies and legal policies to control cryptocurrency. Otherwise, it will be a major headache for the government. And crypto lobby should understand these things, that they need to be regulated, because regulation is the only way to save crypto. This is the line. Regulation is the only way to save crypto. And why I am saying that regulation is the only way to save crypto, because if there is no regulation, then the cryptocurrency will become very bubble, like a bubble, and people will invest initially, they will burn their fingers, so they will not invest. So if one time investment is there only, then any industry which have only one time investment will not survive. अब एक सिंपल एग्जांपल है ना, किसी दुकान में गए बिस्किट खरीदने, बिस्किट खरीद लिया आपने, वो बिस्किट निकला सड़ा हुआ, इट स्टार्ट्स रॉटिंग, क्या जाएंगे आप उस दुकान में बिस्किट खरीदने? सच से बताइएगा, स्पीक ऑनेस्टली, नहीं। इसी तरह अगर आप क्रिप्टो खरीदते हैं और आपको नुकसान हो गया, दोबारा खरीदने का हिम्मत होगा आपको? क्या वो ट्रेडर जिसको 2.5 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ है, उस अगर वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं होगा, तो क्या उस पर फिर से दम होगा कि वो क्रिप्टो खरीदे? नो, ही विल नॉट। तो ऐसे ही बात है, रेगुलेशन उसमें ज़रूरी है। और बहुत लोग समझ भी गए हैं, बड़े बड़े जो क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कॉइन स्विच, कुबेर, कॉइन DCX, उनके जो CEOs हैं, उन्होंने बोला भी है कि वी विल वेलकम द रेगुलेशंस पुट फोर्थ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी गवर्नमेंट, इफ इट विल नॉट अफेक्ट द क्रिप्टो। सो ऐसे रेगुलेशन देने चाहिए जो क्रिप्टो को लेके चले साथ में। किसी भी कंट्री का भी यहाँ पे अब रिलक्टेंस क्यों? अब जो एक और टॉपिक में हम बात करते हैं कि रिलक्टेंस क्यों है, गवर्नमेंट का रिलक्टेंस क्यों है, रेजिस्ट क्यों कर रही है कि इसको लीगल नहीं मान सके? क्योंकि दे आर थिंकिंग दैट एनी कंट्री हैज द सोवरेन राइट्स ऑन देयर करेंसी। इंडिया का रूपी पर, US का डॉलर पर, रशिया का रूबल पर, चाइना का युआन पर, जापान का येन पर, सब पे अपना सोवरेन अधिकार है, वो उसको चेक करते हैं। और वो सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रल बैंक द्वारा रेगुलेटेड है। लेकिन अब अगर क्रिप्टो करेंसी एक हाईली अनरेगुलेटेड और डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, अगर वो आ गया मार्केट में और जिस तरह से उसका पेस है, गति है, अगर द गवर्नमेंट्स आर फियरिंग दैट इट विल रिप्लेस देयर ओन करेंसी एंड देयर ओन करेंसी विल नॉट एग्जिस्ट इन फ्यूचर, सो द क्रिप्टो लॉबी हैड टू अंडरस्टैंड दैट क्रिप्टो करेंसी विल हैव टू मोर मतलब उसको बर्दाश्त करना होगा थोड़ा सा रेगुलेशन। आप ऐसे नहीं रख सकते, आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कुछ सुधार करने होंगे, गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, वरना ये जो समस्या है ये किसी भी गवर्नमेंट को पसंद आएगा। क्रिप्टो से मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म हो गया। क्रिप्टो करेंसी अभी इंडिया में ठीक से आया नहीं है, तब भी इंडिया में इतने टेररिज्म होते हैं ना। अब आई विल नॉट गो देयर कि कहाँ से क्या होते हैं, पर अब अगर ये आ गया तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हैकर्स की प्रॉब्लम तो बताया ही मैंने आपको कि इफ PMO ऑफिस इज हैक्ड, इफ PMO ऑफिस इज नॉट सेफ, सो एनीथिंग इज नॉट सेफ। इफ PM का अकाउंट ही हैक हो जाए तो फिर क्या आ जाएगा। और ये PM वाला एग्जांपल भी मैंने क्यों दिया, क्योंकि उस पर हैक करके लिखा गया कि इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर मान लिया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी गवर्नमेंट इस क्रिप्टो बिल को अभी रख नहीं रही है, क्योंकि 26 दिसंबर तक का विंटर सेशन है, तो हो सकता है उस समय तक बीच में गवर्नमेंट नहीं रखे पार्लियामेंट में इस बिल को। अभी तो खैर इधर जनरल CDS रावत, बिपिन रावत की मृत्यु हो गई, तो पार्लियामेंट में वो ये सब चल रहा है,
आपने सुना ही होगा, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्हीं को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। तो वो बहुत दुखद घटना थी। इट इज़ वेरी सैड मोमेंट फॉर द होल इंडिया। सो इसलिए, लेकिन क्रिप्टो बिल जब आएगा तो हम उसको देखेंगे ज़रूर कि क्या उसमें गवर्नमेंट रेगुलेट करती है उसको, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने सी सेड दैट द क्रिप्टो बिल विल कम एंड वी विल रेगुलेट इट। She also cleared that the crypto advertisements will not be banned, but the chances are high that the Advertisement Standard Council of India should be authorized to keep a check on and the advertisements of crypto, and SEBI will be authorized to regulate crypto. So ये बात थे। और कुछ क्रिप्टो के, और गवर्नमेंट रेसिस्ट इसलिए कर रही है, और अगर गवर्नमेंट उसको पूरी तरह से बैन भी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इट कैन क्रिएट 8 लाख जॉब्स, अभी 50,000 जॉब्स है उसका क्रिप्टो की दुनिया में, इंडिया की तरफ से। इट हैज़ पोटेंशियल फॉर क्रिएटिंग 8 लाख जॉब्स बाय 2030। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट की एक समस्या दूर हो सकती है फ्यूचर में। 8 लाख जॉब्स बाय 2030 एंड इट बिजनेस विल एक्सपैंड ऑन $241 मिलियन बाय 2030। तो इतना एक्सपैंड करेगा तो जीडीपी में भी इसका कंट्रीब्यूशन होगा। गवर्नमेंट ये भी एक हेडेक है कि व्हाट इज द टैक्सेस डिसाइड ऑन क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स का भी कोई टैक्स निश्चित नहीं है। सो इट विल ऑल्सो बी डिसाइडेड इन फ्यूचर। इफ इट विल डिसाइड ऑन इन द क्रिप्टो बिल देन इट विल वेरी गुड, बट आई डोंट थिंक दैट द गवर्नमेंट विल डिसाइड दिस इन द क्रिप्टो बिल। सो इट विल बी डिसाइडेड लेटर ऑन। बट ये जो पोटेंशियल्स है, 2 पोटेंशियल्स, दे आर 2 पोटेंशियल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। 8 लाख जॉब्स बाय 2030 which will and after that also it's estimated statistics, it can surge up to 2 to 3 times। मतलब 8 लाख से 16 लाख जॉब्स भी हो सकती हैं। और ये $241 मिलियन तो एक एवरेज है, ये 300 मिलियन भी हो सकता है, 300 मिलियन भी। तो क्रिप्टो करेंसी में बहुत स्कोप है, बट क्रिप्टो करेंसी नीड्स टू बी रेगुलेटेड एंड मॉनिटर्ड। विदाउट मॉनिटर्ड क्रिप्टो करेंसी कैन बी एक्साइटमेंट, but without moderation, without regulation, it is not possible, not possible to save crypto in India, at least in India. In other countries I don't know, but in India at least I say that, because of the political circumstances and with the contribution of the political circumstances only 1%, because of the economic position, economic situation and economic standards of India, it will not survive without regulations. So let's see what will government will bring on in crypto bill, in cryptocurrency regulation bill. So after that bill will come, we will make the part 3. And if the bill will not come in this session, then when it will come, then we will make the 3rd part of this video. And if the cryptocurrency bill will come soon in this session also, then we will make part 3. Otherwise we will not make that. So thanks for watching and keep watching and stay tuned for the new videos. And most importantly, I have to say one thing, that if you have not watched the first part of this video, then you will not understand this video. So watch that first part. So like this video, share this video and subscribe our channel and hit the bell icon. So once again I will say thanks for watching and keep watching.